So hello everyone. Today we have with us Mr. Shubham Nagargoche. He's an IPS officer and he's also our super mentor at Civil Daily. Those who don't know about super mentorship program, this is one program that of mentorship. Civil Daily is known for its mentorship program, especially personal mentorship program. So in three layers of mentorship, the first layer of the mentorship would be of our in-house mentors. Second layer of mentorship will be of Sajal sir and his team. And third layer is a layer where we connect you to an IPS officer or an IAS officer like Shubham sir, who will also guide you towards your UPSC exam preparation. So because an officer can only tell you how to become an officer. That is the idea of super mentorship program. So briefly, this was about super mentorship program. The agenda for this webinar is Shubham sir will be talking about consistency, time management, and how to build strong foundation for UPS. In consistency, also, he will be talking about various aspects of consistency, procrastination, if you are on a break, how to revamp yourself after a break, or if you are self-studying without, if you're financially weak, so how can you manage your preparation accordingly? In time management, also, Shubham sir will touch about those aspects like how working professional or college students can prepare for UPSC exam, how to prepare UPSC exam in an integrated manner. If we can, he will also give you a timetable, a generic timetable, because 8 months are left for next UPSC exam. So how to go about it? And when he'll talk about strong foundation, he'll talk about current affairs, NCRTs, note making, revision. So this is going to be a great webinar, a great masterclass, and we are thankful to Shubham sir for taking out his time. IPS is a very hectic job, and despite that, he is taking time for all of us. Thank you, Shubham sir. I really hope this webinar goes as planned. And to participants, you can type down your questions while he is interacting with you. So I will give him the floor for next 20-25 minutes. He will speak on these issues. You can type down your questions. आप अपने क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप डाउन कर सकते हैं, बाइलिंगुअल रहेंगे और मैं उसको कंपाइल करता रहूंगा. उसके बाद जब हम फ्लोर को ओपन करेंगे फॉर क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद these questions will be taken. And also please keep your mic muted. तो शुभम सर को प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा. कोई क्वेश्चन होगा तो एंड में लेंगे. उनका फ्लो मत तोड़ना, उनका रिदम मत तोड़ना. So I hope everything is clear and we are good to go. Over to you, Shubham sir. Yeah, thank you so much. Thank you so much. So it's been again a pleasure to be on Civil Daily because यहाँ पे webinar चलते रहते. मतलब I've already taken 2-3 of those, and will ensure कि ये भी काफी impactful and students will get informative knowledge के how preparation should be. So as you have said कि we are starting with consistency. So consistency basically, let's first understand कि why do we need consistency? Because UPSC एक ऐसा exam है which is not like a sprint. It is a marathon wherein you have to study for years together. मतलब exam का process ही 1 साल का है, obviously prelims, mains, interview. तो ऐसे 2 महीना पढ़ लिया, 3 महीना पढ़ लिया, उस पे clear होता नहीं है. तो that's why consistency is very important. तो उसमें if you are self studying, अगर खुद से पढ़ रहे हो, if you have not joined any क्लासेस ज्वाइन करने के बाद तो भी ऐसा होता है कि यू आर हैविंग सम लेक्चर्स एंड लेक्चर होने के बाद यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, यू हैव टू रिवाइज दोस नोट्स. तो थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है. बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन एंड व्हेन यू आर नॉट जॉइन द क्लासेस, देन कंसिस्टेंसी इज इवन अ बिगर चैलेंज. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. तो एक अगर टाइम टेबल रहा ना तो ही यू कैन बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन. तो भी मतलब टाइम टेबल कैसे बनाएंगे फिर? तो टाइम टेबल शुड बी ऑफ एन एंटायर ईयर. तो पहले 1 साल भर का अंदाजा लो कि व्हाट आर यू सपोज टू कवर एंड थिंग. तो एक रहेगा ईयरली टाइम टेबल. देन मेक पार्ट्स ऑफ इट एंड मेक इट अ 6 मंथली आल्सो. आफ्टर 6 मंथली मेक इट अ मंथली. मंथली के बाद वीकली, वीकली के बाद डेली. तो ऐसे अगर जब प्लान करोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं समझेगा कि हाउ टू मेक अ नो कि आप कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर कर सकते हो. देन यू कैन मेक अ ग्रेट टाइम टेबल. तो उसमें ऐसे ध्यान रखना कि सपोज आज का दिन है तो डेली टाइम टेबल में यू हैव टू व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, तो सुबह ही नोट डाउन कर लो कि बाद 2 घंटे में मतलब करंट अफेयर्स करूंगा, 3 घंटा मैं मेंस करूंगा, 2 घंटे मेरी कोई क्लास रहेगी और उसके बाद मैं फिर 2 घंटा रिवीजन करूंगा एंड दैट्स ऑल.
तो ऐसे डेली टाइम टेबल रहेगा, फिर वीकली भी बनाना है कि एक वीक में क्या कवर करना है। फिर जैसे मंथली में ऐसे रहता है यूजुअली कि 3 साढ़े 3 महीने में ऑप्शनल कवर करना रहता है, तो उसका वैसे टाइम टेबल बना लीजिए कि रोज इतने इतने टॉपिक्स, वीकली इतने इतने टॉपिक्स, एंड इवेंचुअली ऐसे 3 साढ़े 3 महीने में तुम्हारा ऑप्शनल कवर हो जाए। सो यू हैव टू मेक अ डिटेल टाइम टेबल लाइक दिस, सो दैट यू विल बी कंसिस्टेंट थ्रू योर प्रिपरेशन। बिकॉज अगर टारगेट नहीं रहता है ना, तो व्हाट हैपेंस इज, अगर पढ़ाई चालू करी सुबह, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग सर्टेन टारगेट्स कि आज इतना इतना करना है, देन किसी ने फोन कर लिया तो अपन उठते हैं, वी गो आउटसाइड, वी चिल आउट विद फ्रेंड्स, एंड ये सब चीजें होते रहती है। बट अगर टारगेट रहा तो फॉर बिफोर कंप्लीटिंग योर टारगेट यू कैन नॉट गो अवे एंड चिल आउट और डू एनी अदर थिंग्स, टू बी वेरी ट्रुथफुल टू योर सेल्फ। मतलब प्रिपरेशन आप आपको सिलेक्ट होना है सिविल्स में, तो इसकी वजह से यू हैव टू बी वेरी ट्रुथफुल टू योर सेल्फ, एंड रोज इंश्योर करना है कि तुम्हारे जो टारगेट्स है वो टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, एंड वो साल भर की पढ़ाई हो जाती है। मतलब आई यूज्ड टू फॉलो दिस पैटर्न टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। देन और एक चीज रहती है कंसिस्टेंसी में बैरियर के, विच इज ब्रेक्स। तो ब्रेक्स ले कितने कितने लेने चाहिए, दिन में कितने ब्रेक लेने चाहिए, या फिर इवेंचुअली पूरे से हफ्ते में मंथ में कितने ब्रेक लेने चाहिए। तो डेली ब्रेक्स आर नॉट दैट रिक्वायर्ड। मतलब जो भी तुम ऐसे चाय पीने के लिए उठते हो 10 15 मिनट, सो वो ब्रेक्स आर सफिशिएंट। सो आफ्टर स्टडिंग फॉर 1 1.5 hour, you can go for 10 minutes का break, not more than that, and again get back to studies and keep studying. एंड ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसे भी नहीं करना कि लगे 4 5 घंटे एक लाइन से पढ़ते रहते हो, बिकॉज बीइंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोडक्टिविटी इज नॉट एट वेरी पीक फॉर 4 5 hours एट अ स्ट्रेच। तो ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट, ब्रेक से तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, बट यू हैव टू। फिर बाकी बाकी जो ब्रेक्स रहते हैं जैसे कि फेस्टिवल से या फिर कहीं और जाना है, तो आई वुड सजेस्ट के, मतलब फेस्टिवल्स तो इंडिया में बहुत होते रहते हैं। अब मतलब गणपति हो गए, अब नवरात्रि चल रहा है, अब दशहरा है, उसके बाद दिवाली है। अगर हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो बैठोगे तो फिर होगा नहीं यूपीएससी। तो फॉर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली 1 2 दिन निकाल सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। सो इंश्योर करो कि आप खुद से डिलीजेंट हो, खुद से अकाउंटेबिलिटी रखो, किसी और को अकाउंटेबिलिटी रखने की जरूरत भी ना पड़ने दो। बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, एंड बस टारगेट्स कंप्लीट करते रहो, ऐसे ही तुम्हारा प्रिपरेशन चलते रहेगा। और फिर अब कंसिस्टेंसी में दिक्कतें क्या आती है, तो बेसिकली सम डिस्ट्रैक्शंस आर विच यू कैन अवॉइड, सोशल मीडिया ऑब्वियसली। सो अगर इंस्टाग्राम पे हो या कहीं फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, तो मतलब वहां से कुछ ऐसे क्वालिटी इनपुट तो आने वाला नहीं है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दिस डिस्ट्रैक्शन। कुछ 1 2 साल के लिए नहीं मत रहो उस पे, जब तक प्रिपरेशन फेज है। आफ्टरवर्ड्स यू कैन बी ऑन वट एवर प्लेटफॉर्म यू वांट टू बी। थोड़ा सोशलाइजेशन भी ऐसा रहता है कि फ्रेंड्स बुलाते हैं, कॉलेज लाइफ है या कॉलेज लाइफ के बाद जस्ट पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो फिर वो फ्रेंड सर्कल और वो चीजें छूटती नहीं है। बट इवेंचुअली मतलब वीक में एक आधी बार जा सकते हो 2 3 घंटे के हैंग आउट के लिए, बट नॉट मोर देन दैट। तो सोशलाइजेशन भी थोड़ा कम करना है। इट्स गुड कि यू हैव सम फ्रेंड्स एंड यू। तो प्रिपरेशन की फेज में ऐसे होता है कि मतलब थोड़ा सा कभी कभी ऐसे वी आर लो के कुछ मतलब पढ़ाई हो रही नहीं है, या कुछ हो जाता है घर पे, कुछ ट्रेजेडीज रहती है, तो एट दैट टाइम यू नीड सम फ्रेंड्स। बट तो वो पूरा कट आउट नहीं करना है, बट थोड़ा मिनिमाइज करना है, ज्यादा भी आइसोलेट नहीं होना है, बट एक डिसेंट मिडल पाथ रहना चाहिए उसमें। फिर if you want to clear, then you have to be self motivated for being consistent. So जो फायर रहेगा तुम्हारे अंदर, जो पैशन रहेगा तुम्हारे अंदर फॉर गेटिंग इनटू सिविल सर्विसेज, तो वो बस मतलब वैसे करना है या किसी ने बोला है करने के लिए, इफ यू आर डूइंग इट फॉर दैट थिंग, तो मतलब फिर थोड़ा मुश्किल है। फिर बीइंग कंसिस्टेंट इज अ टफ जॉब। बट इफ यू हैव दैट पर्पस कि करना क्यों है, एंड व्हेन यू जाता है, मतलब बी वेरी श्योर कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन। एंड जब भी तुम्हें लगे कि चलो एक आधा महीना पढ़ लिया, नाउ यू आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट या पढ़ाई हो रही नहीं है, देन अगेन रिकॉल कि व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। बिकॉज जैसे 4 5 महीने पढ़ के छोड़ देना इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब तुम्हें करना है तो साल भर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड के व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड स्टार्टिंग दिस जर्नी, कि तुम्हें सिविल सर्विसेज में आना क्यों है। इफ यू आर क्लियर विद दैट, देन यू विल बी मोटिवेटेड ऑन योर ओन सेल्फ, एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड व्हेन यू आर मोटिवेटेड बाय योर ओन सेल्फ, तो फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। तो बेसिकली ये एक पूरा कंसेप्ट है जिस पे थोड़ा ध्यान देना। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट के मेडिटेशन करते रहो। मतलब what happens है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ऐसे 10 15 मिनट 20 मिनट भी वे थिंक कि नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, बट मेडिटेशन इज समथिंग विच हैज हेल्प मी अलॉट।
तो आई यूज टू प्रैक्टिस विपासना फॉर लाइक 20 minutes रेगुलरली। तो उससे क्या होता है ना, मतलब थोड़ा फोकस रहेगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बना रहेगा। एंड व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारी कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी, मतलब थोड़ा क्लियर रहेंगे, तुम्हारे गोल्स क्लियर रहेंगे, तुम्हारे टारगेट्स क्लियर रहेंगे। तो दैट हेल्प्स। तो थोड़ा मेडिटेशन पे भी ध्यान देना। सो आई थिंक दिस इज अबाउट व्हाट आई कंसिडर एज कंसिस्टेंसी एंड व्हाट कुड बी इम्प्लीमेंटेड टू बी बेटर एट इट। इसके बाद जो भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी, यू कैन ऑफ टाइम। तो देखो यार, फिर से यहाँ समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक साल का टाइम है, उसमें एक कुछ टाइम टेबल बनाना है। सबके पास सेम ही टाइम, मतलब उतना ही एक साल का टाइम है, सपोज 23 का अटेम्प्ट है तो। बट उसमें फिर टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है कि मतलब प्रीलिम्स के लिए कितने दिन रखना है, मेंस के लिए कितने दिन रखना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ठीक से नहीं रहेगा तो इवेंचुअली कुछ चीजों पे यू विल मिस आउट एंड देन यू विल मिस आउट फ्रॉम द फाइनल लिस्ट ऑल्सो। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, तो उसमें कुछ लोग कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे बीइंग इन अ वर्किंग प्रोफेशनल वैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा टफ हो सकता है। तो दे कैन टेक आउट सम 4-5 hours फ्रॉम द स्केड्यूल एंड दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब वो जैसे क्वेरीज रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली एड्रेस करूंगा मैं कि हाउ यू कैन बी, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल रह के कैसे पढ़ाई कर सकते हो। बट एक ईयरली टाइम टेबल डेफिनेटली रहना चाहिए तुम्हारा, जिसमें सपोज अगर अपन कंसिडर कर रहे हैं कि यू आर गिविंग 2023 का अटेम्प्ट, तो 2023 के अटेम्प्ट के लिए यू हैव मतलब कुछ अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो अक्टूबर से फरवरी तक या मिड फेब तक यू कैन गो विथ योर मेंस। तो इसमें GS1, GS2, GS3, GS4 के नोट्स रेडी रहने चाहिए, एंड इसमें तुम्हारा ऑप्शनल रेडी रहना चाहिए। तो अगर जनवरी फेब तक ऑप्शनल और ये सब क्लियर करोगे, तो उसके बाद यू कैन इजीली मूव ऑन टू प्रीलिम्स। एंड फिर आगे के फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने देने चाहिए तुमने प्रीलिम्स के लिए। और जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट लिख रहे हैं, हु आर बिगिनर्स इन द प्रिपरेशन, दे कैन गिव इवन मोर टाइम, मतलब 4.5 months या 5 months भी चलेगा। बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द फर्स्ट हर्डल। बट दोज हु आर इनटू प्रिपरेशन, हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर लाइक 2-3 years, देन उनके लिए आई वुड सजेस्ट के इन योर टाइम टेबल give at least till January or mid Feb to for mains, and after that switch over to prelims. और इसमें रहता है कि टाइम मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ वट एवर एग्जाम्स यू आर गिविंग। तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो फिर तो थोड़ा ठीक है, बट एट द सेम टाइम इफ विथ यूपीएससी यू आर गोइंग फॉर सर्टेन एग्जाम्स लाइक आरबीआई दे रहे हो, सीबी दे रहे हो, या आपके स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, तो इंश्योर करना है कि जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके साथ थोड़ा सा जो भी सिलेबस है या पैटर्न है वो थोड़ा मैच हो जाए। मतलब जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैच होगा, उतना इट्स वेरी इजी फॉर अस टू गो फॉर इट। एंड if it is not मैचिंग, देन एटलीस्ट इंश्योर करो कि जो भी डेट्स है एग्जाम्स के, तो वो डेट्स एटलीस्ट तुम्हारे एक को मतलब क्लैश नहीं होने चाहिए। बिकॉज इफ यू आर हैविंग प्रीलिम्स ऑफ आरबीआई एंड प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी, देन ऑब्वियसली यू विल गो फॉर प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी, एंड फिर आरबीआई का अटेम्प्ट रह जाएगा। तो ऐसे लास्ट ईयर हुआ था। तो एंड ट्राई टू इंश्योर कि अगर कुछ और एग्जाम दे रहे हो तो उसके डेट्स क्लैश ना हो यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ। तो टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे ही होगा। फिर डेली टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वही है कि सुबह उठ के जब ऐसे टाइम टेबल बना लोगे दिन भर का, तो देखो टाइम टेबल इज समथिंग विच इज योर मतलब सक्सेस मंत्र बेसिकली। अगर एक सही टाइम टेबल रहा तो तुम्हारा प्रिपरेशन चलते रहता है, फिर वो डेली रहे, मंथली रहे, साल भर का भी हो जाएगा। बट एक सही टाइम टेबल रहना जरूरी है। तो दैट्स इट फॉर मैनेजिंग ऑफ टाइम। फिर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स चाहिए क्यों फिर से। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स चाहिए बिकॉज यूपीएससी इज वेरी एनालिटिकल इन इटसेल्फ। तो यूपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन रहते हैं वो काफी एनालिटिकल रहते हैं, वेर यू हैव टू थिंक अ लॉट एंड योर कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। इफ दोज आर नॉट क्लियर देन यू विल नॉट बी एबल, इट कम्स टू इकोनॉमी, पॉलिटी, GS2, GS3 और ये सब। तो दैट्स व्हाई हैविंग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आते कैसे हैं? तो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटीज। एंड एनसीईआरटीज एक बार अच्छे से कर लोगे तो एनसीईआरटीज जैसे कि कुछ कुछ एनसीईआरटीज आर मैंडेटरी, लाइक योर पॉलिटी, योर इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी, देन योर ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर का एनसीईआरटी। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, ये तीन एनसीईआरटीज तो बहुत मस्त है। मतलब इसमें से इजीली टेल यू के 17, 18, 19 हर साल डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो एनसीईआरटी में दिया था एंशिएंट एंड मिडिवल के। तो उसके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। फिर एनसीईआरटी करते टाइम व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज के मतलब फर्स्ट रीड, मतलब पहली पहली रीडिंग में बस रीडिंग करो, सब कुछ नोट्स वोट बनाओ मत। फिर दूसरी रीडिंग के टाइम तो पहली रीडिंग के टाइम जब व्हेन यू आर रीडिंग, देन एट द सेम टाइम हाईलाइट व्हाट यू फील इम्पोर्टेंट।
अब तुम हाईलाइट क्या करोगे, मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ओनली यू कैन गेज बाय सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से देखना फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस के लिए कुछ 10-15 साल का, प्रीलिम्स के लिए भी कुछ 10-15 साल का। सो व्हेन यू आर वेरी थरो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, यू विल गेट टू नो व्हाट आर द प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड हाउ यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस। So when you have analysis of that, then only you can get a good idea कि what questions can be asked and what is important for the exam. तो ये प्रीवियस ईयर देखने के बाद फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो वही है, पहले रीडिंग करो, फिर रीडिंग करके टाइम हाईलाइट करो, हाईलाइट करने के बाद नोट्स बनाओ। एंड वंस यू आर डन विद नोट्स, देन ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज। तो नोट्स मेकिंग, रिवीजन, रीडिंग, रीडिंग, नोट्स मेकिंग, रिवीजन, रीडिंग, नोट्स मेकिंग, रिवीजन, यही चलेगा अक्रॉस द सब्जेक्ट्स। एंड वंस यू आर डन विद नोट्स, देन ऑब्वियसली यू हैव टू गिव मल्टीपल रिविजन्स। तो ऐसे एक दो रिविजन से होता नहीं है, मेंस में तो यू हैव टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट। तो वहां पे बहुत डिफिकल्टी रहती है, तो वहां पे एटलीस्ट 4-5 रिविजन तो लगते ही है। एंड ऑल्सो सेम गोज विद प्रीलिम्स के भी अगर 3-4 रिविजन अच्छे से लगा के जा रहे हो स्टैटिक पोर्शन के, एंड ऑल्सो फॉर करंट अफेयर्स, तो यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड यू कैन कम टू द करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नोट्स मेकिंग एंड एनसीईआरटीज के बारे में। और फिर रहता है अपना करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इज अ वेरी बिग ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन यूपीएससी, बिकॉज जीएस टू जीएस 3 तो तुम्हारा पूरा करंट करंट अफेयर्स ही रहता है मेंस में। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में भी लगभग एक हार्डली 40 क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, एंड ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है आजकल। तो इसलिए करंट अफेयर्स करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज डेली गो थ्रू न्यूज़पेपर्स, एंड आफ्टर गोइंग टू न्यूज़पेपर्स यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ एडिटोरियल्स। कि अगर एडिटोरियल इंपॉर्टेंट लग रहा है, एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, मतलब यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ऐसे एडिटोरियल से मेक नोट्स आउट ऑफ इट। एंड फिर जैसे एडिटोरियल आते रहते हैं, मतलब जैसे फार्म बिल्स टाइप कुछ लिया या रशिया यूक्रेन वॉर लिया, तो वो एक दिन का एडिटोरियल नहीं है, मतलब उस पे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते रहेंगे, एडिटोरियल कीप्स ऑन कमिंग। सो यू हैव टू ऐड वट एवर पॉइंट्स आर कमिंग एंड वट एवर यूनिक पॉइंट्स यू कैन कलेक्ट। तो अकॉर्डिंगली इशू बेस्ड नोट्स बनाना फॉर करंट अफेयर्स ऑफ मेंस, तो वो रहेंगे इशू बेस्ड। जहाँ पे यू कैन ऑल्सो गो थ्रू समाचार मंथन ऑल्सो, ये समाचार मंथन में भी वो इशू बेस्ड कवर करते हैं। मेंस के लिए ध्यान रखना कि मतलब ऐसे फैक्चुअल चीज पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेंस अच्छे से क्लियर करना है तो एनालिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, विच यू कैन डेवलप फ्रॉम एडिटोरियल्स। तो एडिटोरियल से नोट्स बनाओ, दैट्स वन थिंग फॉर मेंस। एंड कमिंग टू प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स यू कैन कवर फ्रॉम करंट अफेयर्स का मैगजीन। तो एक तो आपका हो जाएगा सिविल दिल्ली का समाचार मंथन, जो कि अच्छा है, बट एट द सेम टाइम के मतलब बहुत डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं। तो एंड यू हैव टू रीड अ डाइवर्स सेट ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसके लिए और एक कोई मैगजीन उठा लेना, मतलब विजन हो गई, फोरम हो गई, या कोई भी हो गई। Sorry तो for दो interrupting. तो Sir, दो दो Please go ahead, तो sir. या तो हाँ, तो एटलीस्ट दो दो सोर्सेस तो भी करंट अफेयर्स करने चाहिए। बिकॉज एक सोर्स से करोगे तो दैट इज आई थिंक, मतलब ऐसे कोई गारंटी दे सकता नहीं है कि इफ यू आर कवरिंग इट फ्रॉम दिस, मतलब इफ यू आर कवरिंग देन यहाँ से यूपीएससी के क्वेश्चन आएंगे। तो जस्ट डाइवर्सिफाई करने के लिए करंट अफेयर्स को गो थ्रू टू सोर्सेस, एंड दो सोर्सेस कॉम्प्रिहेंसिवली थ्रू, दैट्स मोर देन इनफ। तो ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स के बारे में। तो आई थिंक अब दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Baki, we can open the floor for questions. Okay, so questions on WhatsApp also, because a lot Okay. of questions came to me on WhatsApp also. So what I'll do is I'll ask questions theme wise. So first of all, I'll ask questions on consistency. So Okay. the first question is somebody is waking up early, so that could be counted as a question in consistency. But he sleeps within the day. मतलब वो उठते जल्दी हैं, लेकिन उसका वो फायदा उठा नहीं पाते क्योंकि दिन में वो सो भी जाते हैं। तो क्या ये नेसेसरी है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए? Okay, so if you are मतलब getting up early, then that's a very good quality. मतलब सुबह उठ रहे हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि सुबह अगर ऐसे 3 बजे के आसपास उठ रहे हो तो 6-7 बजे जो शांत वाला स्ट्रेच रहता है, वहां पे आपका 3-4 घंटे का एकदम प्रोडक्टिव पढ़ाई हो जाएगा। बट उठ रहे हो, अगर सुबह उठ रहे हो तो इफ यू आर कंप्लीटिंग ओनली 3-4 hours ऑफ स्लीप, एंड व्हेन यू आर गेटिंग अप, देन इवेंचुअली दोपहर में 2-3 घंटे सो जाओगे, तो वो यूजफुल नहीं रहेगा। मेक श्योर के जो भी सो रहे हो रात को, दैट इज एट अ सिंगल स्ट्रेच। तो एक 6-7 घंटे का नींद लेना है रात को। फिर उसके बाद में अगर इफ यू आर गेटिंग अप एट 4-3, देन दैट्स गुड। एंड दिन में फिर ट्राई टू डू वन थिंग, मतलब दिन में 2-3 घंटे सोना नहीं है, एक 15-20 मिनट्स का नैप इज वेरी नेसेसरी। तो जब भी खाना हो जाता है, दोपहर को पढ़ाई करते हो अगर तब नहीं होती है, तो 15-20 मिनट का नैप लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट स्ट्रेच। Right.
So somebody wants to take a break in the preparation. He has given a number of amount of attempts, and he Okay. cannot decide that he thinks that if he takes a break, his rhythm of preparation will break down. तो उनको नहीं समझ आ रहा कि वो जॉब करें या फिर कोई कोर्स करें, लेकिन वो ब्रेक लेने के लिए श्योर है. तो बस उनको ये क्लैरिटी दिलाओ कि ब्रेक लेना चाहिए या नहीं, और कितना लेना चाहिए, आइडियल नंबर ऑफ टाइम क्या है ब्रेक लेने. ओके, सो इफ यू आर नॉट क्लियर कि आगे करना क्या है, तो जब तक आपका ये चीज नहीं क्लियर होता है ना, तब तक व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपने 3-4 अटेम्प्ट दिए एंड 3-4 अगर सीरियस अटेम्प्ट दिए तो फिर आपको ब्रेक से उतना फर्क पड़ेगा नहीं. एट द सेम टाइम जितना भी टाइम यू आर टेकिंग इन एज अ ब्रेक, उसमें बस न्यूज़पेपर इंश्योर करो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो रेगुलरली एंड थोड़ा अपडेटेड रहो, दैट वुड बी इनफ. फिर जब यू हैव डिसाइडेड के यू आर अगेन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो फिर तब फिर से स्टार्ट कर देना जो भी नोट्स है, फिर उसमें ऑप्शनल या मेंस का प्रिपरेशन जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली. आपने ऑलरेडी कह दिया सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के बारे में, बट देयर इज आल्सो क्वेश्चन कि और क्या और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं इस प्रिपरेशन में अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया. एक सोशल मीडिया, बाकी एक मतलब वो मेरे साथ जो रहता है वो मतलब सोशल मीडिया छोड़ के एक्चुअल फ्रेंड्स के साथ काफी चिल करता हूँ मैं. तो फिर वो थोड़ा वो भी एक अवॉइड करना पड़ता है. सपोज दिल्ली में फिर घूमने निकल गए, जामा मस्जिद, कहीं कुतुब मीनार देखने गए, ये चलते रहता है. तो फिर वो थोड़ा सा मतलब ब्रेक के लिए ठीक है, अगर मतलब 1 महीना पढ़ाई करने के बाद इफ यू आर गोइंग आउट एंड टू सम मॉन्यूमेंटल प्लेस या कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उतना एक दिन का ठीक है, बट ऐसे रेगुलरली वो पैटर्न नहीं रहना चाहिए. राइट. सर प्रीवियस वाले ने काउंटर क्वेश्चन किया है अपने स्लीपिंग हैबिट वाले में. उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट हैविंग द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली. इफ आई वांट टू वेक अप अर्ली आई एम गेटिंग स्लीप ऑल डे, सो प्लीज हेल्प मी हाउ टू टैकल दिस. उनको आदत नहीं है उठने की जल्दी, वो अच्छा. उठना चाहते हैं जल्दी, लेकिन अच्छा, अगर वो उठना उठते. चाहते हैं जल्दी. हाँ, इफ आई वांट टू वेक अप अर्ली आई एम गेटिंग स्लीप ऑल डे, मतलब वो अगर उठने की कोशिश अच्छा. करते हैं तो दिन में सो जाते हैं. तो वो कैसे अच्छा, ओके. टैकल करे उस प्रॉब्लम को, ये हम्म. देखो, उसमें तो ऐसा है कि इफ यू आर मतलब फर्स्ट थिंग आई वुड से इज इफ यू आर टेकिंग एडिक्वेट स्लीप, कि अगर 6-7 घंटे सो रहे हो ना, तो फिर तुम्हें दोपहर को उतना ज्यादा नींद नहीं आएगा. लेकिन अगर सो ही रहे हो 4 घंटा, तो फिर तुम्हें फिर से दोपहर को नींद आ सकता है. तो पहली बात तो ये इंश्योर करो कि 6-7 घंटे सो रहे हो. एंड फिर अगर सुबह उठ रहे हो, तो फिर जब भी तुम्हें नींद आ रही है, तो फिर ऑब्वियसली यार यू हैव अलार्म, यू हैव एवरीथिंग, तुम्हें तुम्हारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं. मतलब यूपीएससी इज ऑब्वियसली बिगर देन योर स्लीप. मतलब अगर तुम्हें सच में क्लियर ही करना है, तो फिर कुछ नहीं यार, मतलब बस याद कर लो कि आज पॉलिटी का लक्ष्मीकांत मतलब लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट खत्म करना है, एंड मैं कैसे सो सकता हूँ. सो इफ यू आर हैविंग वेरी स्ट्रिक्ट टारगेट्स ना, तो टारगेट रहने पे यू कैन नॉट स्लीप. मतलब जब तक अचीव नहीं होते तब तक इट शुड नॉट लेट यू स्लीप. तो प्रैक्टिकली तो यही बोलूंगा मैं कि ऐसे होता है. अगर रोज के रोज टारगेट्स कंप्लीट करना है ना, तो फिर यू विल कट डाउन ऑन मेनी थिंग्स. उसमें स्लीप विल ऑल्सो बी वन ऑफ द थिंग. Right. Everyone, please don't raise hands. I will come to all of you. I'll ask everybody's question. और अगर क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएंगे तब I'll open the mic also. ठीक है? Please don't direct message me your questions. I have read all of your questions. Okay. So consistency में एक last question को इसमें क्लब कर देते हैं कि श्योर, श्योर. consistency in targeting 2023 attempt. ठीक है, तो उन्होंने उसमें हम्म. कंसिस्टेंसी जोड़ दी कि 8 महीने बचे हैं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा. उन्होंने कोई स्पेशल एस्पेक्ट हाईलाइट नहीं किया है कि इस एस्पेक्ट में मैं कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर रहा हूँ. He has just ठीक है written ना. that how do I maintain consistency for that. हम्म. That's it. ओके, तो देखो 23 के अटेम्प्ट के लिए ना, लास्ट के 4 महीने तो छोड़ दो. मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो मेन मतलब प्रीलिम्स करना पड़ेगा. तो वो टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे ऑब्वियसली बी कंसिस्टेंट, क्योंकि एग्जाम काफी पास रहता है. कंसिस्टेंसी की दिक्कत आती है जब एग्जाम बहुत दूर है. जैसे अभी से एग्जाम 8 महीने दूर है, तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी कंसिस्टेंट. तो अभी क्या कर सकते हो ना, अभी एक कुछ मिड मिड जाए मतलब जनवरी या मिड फेब तक एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, जिसमें यू आर सेटिंग डेली टारगेट्स. एंड वो डेली टारगेट सेट करोगे, मंथली टारगेट सेट करोगे, तो मतलब देखो यार, मतलब मेंस का प्रिपरेशन इतना हेक्टिक है ना कि तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं मतलब बाकी कुछ करने के लिए. अगर अभी से काउंट कर रहे हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, तो फिर ये 5-6 महीने में बहुत डिफिकल्ट है टू कवर योर जीएस मेंस के लिए एंड कवरिंग योर ऑप्शनल एट द सेम टाइम. तो अगर ऐसे टारगेट रख रहे हो कि पूरा मेंस ही खत्म करना है मतलब मिड फेब तक या जैन तक, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट. मतलब कंसिस्टेंसी का एक मतलब उसका इंट्रिंसिक चीज समझो. मतलब व्हाई यू आर नॉट कंसिस्टेंसी, बिकॉज मतलब तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही होगी, या यू आर नॉट हैविंग अ टाइम टेबल. तो टाइम टेबल नहीं रहने पे तो कंसिस्टेंसी बनती ही नहीं है. मतलब ऑब्वियसली किसी ने बुला लिया, तुम बाहर जाओगे, पढ़ाई नहीं करने की मन कर रहा है, यूट्यूब देख लोगे, एक हरी वेब सीरीज लगा के बैठ जाओगे, लेकिन बिंज वॉच करोगे ही कैसे जब तुम्हारे टारगेट्स ही बाकी है. तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. मतलब दैट्स द फर्स्ट थिंग. अगर ये रहा तुम्हारा क्लियर है कि तुम्हें करना क्यों है यूपीएससी, तो फिर इट गेट्स अ बिट इजी. अगर तुम्हारा ये क्लियर नहीं रहा ना कि करना क्यों है,
तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट, मतलब कोई फोर्सफुली तुम्हें बिठा नहीं सकता है कि भाई रोज के 10 घंटे लगा दो, उसके 12 घंटे लगा प्रिपरेशन में। तो फर्स्ट वो क्लियर कर लो एंड इवेंचुअली मेक अ गुड टाइम टेबल, आई थिंक दैट्स एनफ। मतलब वही करता था मैं तो। Right. Let's move to time management now. We have taken most of the questions of consistency, and this will Yeah. answer your sub questions also, जो रह भी गए होंगे. Consistency हमने अच्छे से cover कर लिया. Now it's about time management. So somebody is saying कि वो एक अपने definite targets बनाती हैं दिन में, ठीक है, वो उनको पता है कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, बट कभी कभी उनका वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता क्योंकि कुछ टॉपिक्स उनको समझने में बहुत टाइम लग जाते हैं. उस चक्कर में शी इज नॉट एबल टू कंप्लीट हर टारगेट. फिर उनकी प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर उनके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, तो वो कैसे मैनेज करें टाइम को. एक्चुअली देखो, मतलब हाँ, इट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट आल्सो कि जब टारगेट सेट करने का बात किया मैंने, तब आई मिस्ड अ पर्टिकुलर थिंग. टाइम टेबल बनाना है ना, तो 6 दिन के टारगेट्स रखो, 1 दिन का बफर रखो, क्योंकि रोज का कुछ कैरी ऑन होते रहेगा. मतलब आज के अगर टारगेट्स है, इवन इफ यू सेट अ वेरी प्रैक्टिकल टारगेट्स के मतलब ठीक है मैं इतने टाइम में इतना कवर करता हूँ, बट एज यू सेट कि शी इज नॉट एबल टू कंप्लीट और अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा. तो आज का टारगेट खत्म नहीं होगा तो ठीक है, आज का 2-3 घंटे का टारगेट कल पे जाएगा, फिर कल का परसों पे जाएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट जो बैकलॉग बनेगा 5-6 घंटे का, वो फिर वीक के एंड पे क्लियर कर लो. तो दैट्स वाई जब भी टाइम टेबल बना रहे हो फॉर अ मंथ, तो ऐसे 4 बफर रखते जाओ कि 1 वीक है तो 6 दिन की पढ़ाई है, 1 दिन का बफर है. फिर उस बफर में इफ यू आर वेरी कंसिस्टेंट एंड अगर अच्छे से टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो, तो दैट बफर यू कैन ऑल्सो टेक एज अ ब्रेक. तो वो एक तुम्हारे लिए अचीवमेंट रहेगा, तो यू कैन गिव अ ट्रीट टू योर सेल्फ. तो फिर वो टाइम पे थोड़ा चिल करो. अगर तुम्हारा बफर के टाइम पे अगर पढ़ाई हुई नहीं है, टारगेट्स अगर पीछे से खींचे गए तुम्हारे, इफ यू आर हैविंग सम बैकलॉग, तो फिर बफर के टाइम पे यू कैन क्लियर दैट बैकलॉग. तो ऐसे डिमोटिवेट भी नहीं रहोगे, मतलब वीकली तो भी तुम्हारे टारगेट्स कंप्लीट होते रहेंगे. हम्म. एक जेनरिक आइडिया दे दो कि कॉलेज स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स जो जॉब कर रहे हैं, आप उनका मान, सबका यूनिक केस होता है. सी एवरी एस्पिरेंट इज यूनिक इन दिस, एग्जैक्टली, एवरी ऑफिसर आल्सो हैज अ यूनिक सजेशन फॉर दिस. सो इसका एक ही क्वेश्चन बनाते हैं. एज्यूम कर लेते हैं कि वो 9 to 5 बिजी कॉलेज में या ऑफिस में, ठीक है, वो कैसे मैनेज करें अगर वो 23 टारगेट करें तो. देखो, मतलब वो लोग तो जब भी, मतलब फर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें तुम्हारा टाइम काफी इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा. क्योंकि जो लोग कर रहे नहीं है मतलब कुछ जॉब या कॉलेज में, वो तो उनका दिन भर प्रिपरेशन में ही लगा रहे हैं. व्हेन यू आर हैविंग लिमिटेड टाइम, व्हेन यू आर वर्किंग और व्हेन यू आर इन कॉलेज, तो टाइम इफेक्टिवली यूज करो. तो उसके लिए व्हेन यू आर कम्यूटिंग, यू कैन लिसन टू करंट अफेयर्स के लेक्चर्स. सो दिस वुड बी वन एस्पेक्ट कि रोज का रोज करंट अफेयर्स तुम्हारा कम्यूट करते टाइम ही कवर हो जाएगा. ऐसे काफी लोग करते हैं. एंड बाकी रहेगा कि जो भी 3-4 घंटे 5 घंटे निकाल सकते हो, उसमें सबसे पहले तो फंडामेंटल्स क्लियर कर लो. तो लक्ष्मीकांत हो गई, तुम्हारे एनसीईआरटीज हो गए. जब ये बेसिक बुक्स कवर हो जाएंगे, तो आफ्टर दैट यू कैन जंप ऑन टू जो भी मेन, मतलब मेन चीज रहेगी, जो भी मेंस का आंसर राइटिंग है, मेंस का नोट्स बनाना है. लेकिन फिलहाल जो लोग कॉलेज में है, वो लोग तो आई वुड सजेस्ट के रोज का थोड़ा सा न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, एंड एट द सेम टाइम एनसीईआरटीज का फंडामेंटल्स क्लियर करना, मतलब एनसीईआरटीज पढ़ना. इतना किया तो भी सफिशिएंट है. आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ फुल फ्लेज प्रिपरेशन, तब एक सॉलिड टाइम टेबल बना सकते हो फिर 1 साल का. सर बेसिकली समबडी इज आस्किंग कि वो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हैं, उनको ये करना है, तो वो कॉलेज के टाइम में शुरू कर दें या फिर वो थोड़ा कॉलेज ग्रेजुएट होने का वेट करें. या और उसमें एक क्वेश्चन मैं और क्लब कर देता हूँ. समबडी इज आल्सो गिविंग मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे यू आल्सो हैव क्रैक्ड आरबीआई ग्रेड बी एंड आईपीएस टुगेदर. So like you, many people are giving other government exams also. So what could be there as a strategy for them? क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होता है. आरबीआई ग्रेड बी और बराबर, यूपीएससी का सिलेबस सेम तो होता नहीं है. स्टेट पीसीएस में कई बार डिफर करते हैं, बहुत फैक्चुअल होता है. तो उन बराबर. लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी, अपार्ट फ्रॉम यू हैव टोल्ड कॉलेज और जॉब वालों के लिए, जो अदर गवर्नमेंट जॉब ओके. के लिए प्रिपेयर करें, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी साथ साथ यूपीएससी के लिए. ओके, सो मतलब व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यूपीएससी का थोड़ा बहुत जो सिलेबस है, वो कॉमन है विद आरबीआई, तुम्हारा नाबार्ड एंड थोड़ा बहुत सीबी. तो ये 2-3 चीजें जिसमें तुम्हारा जीएस3 काफी यूज हो जाता है. तो जीएस3 रहता है, इंग्लिश रहता है, तो इंग्लिश में वी आर यूज टू राइटिंग एसेस, तो ऐसी चीजें काम आ जाती है. तो ये 3 एग्जाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर टारगेट कर रहे हो, तो यू कैन फोकस अपॉन दीज. एंड फिर वही है कि ट्राई करो कि एग्जाम क्लैश ना हो. मतलब एक आइडिया ब्रीफली सबको रहता ही है कि कौन सी एग्जाम कब होती है, एंड यूपीएससी तो साल के पहले ही पूरा टाइम टेबल डाल देता है. तो फिर अगर एग्जाम क्लैश हो रही होगी ना, तो फिर बेटर है कि प्रिपेयर ही मत करो. मतलब दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो पहले ही, एंड फिर एक ही प्रिपेयर करो. एंड जो एग्जाम क्लैश नहीं हो रही है, जिसमें सपोज प्रीलिम्स है 6 महीने बाद,
तो अगर आरबीआई है 3 महीने बाद, तो फिर पहले आरबीआई का प्रिपेयर कर लो 3 महीने, उसके बाद 3 महीने यू कैन फोकस ऑन यूपीएससी का प्रीलिम्स। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का सीन है कि पूरा साल भर का टाइम टेबल देख लो एग्जाम्स का, कि कब नोटिफिकेशन किसका निकलता है। एंड एट द सेम टाइम अगर फिर भी साथ में ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑब्वियसली मतलब डिवोट सर्टेन आवर्स फॉर यूपीएससी, मतलब सपोज 6 आवर यूपीएससी कर लो, 3 घंटे कोई और एग्जाम कर लो, तो वैसे किया जा सकता है। और कॉलेज में उनको प्रिपेयर करना चाहिए क्या? वैसे वो सब्जेक्टिव है, बट वुड यू कॉलेज एडवाइस? कॉलेज में देखो यार, मतलब अगर इंजीनियरिंग टाइप कुछ कर रहे हो 4 साल का, तो आई वुड सजेस्ट कि जब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है ना, तो फिर थर्ड ईयर से थोड़ा स्टार्ट करो, फोर्थ ईयर में थोड़ा और ज्यादा करो, एंड इवेंचुअली गेट इनटू द फुल फ्लेज प्रिपरेशन। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मत करते बैठो, मतलब आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड, क्योंकि कॉलेज भी एक लाइफ है तुम्हारी, विच इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि वहां पे फ्रेंड्स बनाओगे, वहां पे कुछ नई चीजें सीखोगे, कॉलेज के एकेडमिक्स रहेंगे तुम्हारे। तो वो 2 साल नहीं किया तो भी चलेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। थर्ड ईयर से थोड़ा स्टार्ट कर देना, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। राइट। सो वी विल बी टेकिंग अनदर सेक्शन जहाँ पे मिसलेनियस बना देंगे, जो इन ओके। तीनों फ्रेम में नहीं फिट हो रहे होंगे, उनके क्वेश्चन हम मिसलेनियस में लेंगे। सो एवरीबडी अच्छा। प्लीज बी पेशेंट, ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। ओके। सो एक जेनरिक टाइम टेबल दे सकते हो क्या? जैसे जैसे जेनरिक, सबका केस तो हम नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, बट एक एक जेनरिक टाइम टेबल बता दो जिससे जो आइडियल रहे हर टाइप के एस्पिरेंट के लिए। मतलब दिन के लिए या दिन, फॉर ईयर? मेरे हिसाब से आप एक बता दो, मॉर्निंग से लेके नाइट तक, वो कितना टाइम ऑप्शनल को, कितना टाइम जीएस को, और जो मतलब जो अच्छा। भी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से वो कितने घंटे डिवोट हम्म। करें। और वो डिवोट तो अपने अच्छा। हिसाब से ही करेंगे ऑब्वियसली, अगर करेंगे वो प्रोफेशनल ऑब्वियसली। है तो अपने हिसाब से करेंगे, बट आप बता दो कितना हम्म। टाइम उन्हें कितने चीजों पे देना चाहिए दिन में। ओके। तो ये ऑब्वियसली मेरे एक्सपीरियंस पे रहेगा, तो मैं जो करता था वो चीज बताता हूँ मैं। या दैट्स तो गुड। हाँ, तो बेसिकली दिन का टाइम टेबल तो ऐसे रहता है कि व्हेन यू आर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो तब तो 1-2 अटेम्प्ट तो काफी पढ़ाई करने का जुनून भी रहता है, तो तब काफी पढ़ाई करते हैं अपन। तो व्हाट आई यूज टू डू इज, तुम्हारा एक तो 6 साढ़े 6 घंटे का नींद हो गया, तो वो छोड़ के बाकी टाइम थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ही ज्यादा ध्यान देना है। तो जैसे इफ यू आर गेटिंग, मैं तो रात को पढ़ता था, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब वो टाइम टेबल मैच नहीं होता है। रात को पढ़ते हैं कुछ लोग, दैट्स ऑल्सो गुड, बिकॉज रात को थोड़ा शांत रहता है, कुछ ज्यादा फ्रेंड्स रहते नहीं है। अच्छा, जिनके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स है ना, उनके लिए एडवाइस है कि वो रात को पढ़ सकते हैं, क्योंकि रात को बहुत लोग रहते नहीं है, तो यू कैन सिट प्रॉपरली इन लाइब्रेरी एंड यू कैन स्टडी। दिन में ऐसे होता था मेरे साथ कि मैं उठ गया तो फिर गया चाय पीने को, इसके साथ उसके साथ यही चलता रहता था। तो देखो टाइम, मतलब दिन भर के टाइम टेबल में तो वही है कि करंट अफेयर्स करो 1-1.5 घंटा, मतलब उसमें तुम्हारा न्यूज़पेपर रहेगा, तो 1.5 घंटा न्यूज़पेपर करो, एंड उसमें भी फोकस मोर ऑन एडिटोरियल्स। बाकी के न्यूज में देखो, मतलब सिविल लिए तुम्हारे लिए निकाल रहा है, बाकी क्लासेस भी तुम्हारे लिए निकाल रहे हैं, तो सेम नोट्स अगर बनाते रहोगे तो वो बस, मतलब आई वुड से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। ऑब्वियसली तुम खुद से कर रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग, बट एट द सेम, बट करने के लिए चीजें बहुत है। तो इसलिए 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर के लिए निकालो, और उसमें एडिटोरियल्स पे ज्यादा फोकस करो। बाकी का टाइम वही है, मतलब बाकी फिर मतलब करंट अफेयर्स के लिए तो वही बाकी रेफर कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑप्शनल। तो मेंस के लिए ऑप्शनल काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑप्शनल ऐसा कुछ टारगेट है कि 3-4 महीने में खत्म करना है, तो रोज का 4-5 घंटे तो भी करना पड़ेगा। तो उतना ऑप्शनल का जाएगा आपका। अगर इफ यू आर हैविंग क्लास ऑफ 2.5 आवर्स, तो अगेन यू हैव टू डिवोट अनदर 2.5 आवर्स फॉर ऑप्शनल। तो ये लगभग एक 4-5 घंटे ऑप्शनल के लिए चलेंगे। और फिर जीएस का जो रहता है, मतलब अब भी नहीं किया तो भी चलेगा, इवेंचुअली लास्ट के 4 मंथ फुल्ली प्रीलिम्स ही करना है, बट अभी थोड़ा मेंस अच्छे से करो। तो जीएस में भी फिर ऐसे जीएस सिलेक्ट कर लो, जैसे अब भी क्या कर सकते हो, तो अब भी एथिक्स कर सकते हो, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री कर सकते हो, इंडियन सोसाइटी कर सकते हो। जो चीजें प्रीलिम्स में ज्यादा यूजफुल नहीं है, वो चीजें अब भी कर लो, अब भी वो टाइम टेबल में फिक्स कर लो तुम्हारे। तो फिर इसमें एक, मतलब एक 5 घंटे ऑप्शनल का हो गया, 1.5-2 घंटे रीडिंग हो गया, मतलब न्यूज़पेपर का, तो 7 घंटे यहाँ हो गए। फिर से जो 3-3.5 घंटे बचते हैं, मतलब अराउंड 10-11 आवर्स अगर पढ़ रहे हो डेली, तो आई थिंक सफिशिएंट है। तो फिर उसमें फिर जीएस के नोट्स बना लो, मतलब जो भी जीएस का सिलेबस वाइज है। तो जीएस का मेंस के लिए सिलेबस वाइज तुम्हारे पास नोट्स रहना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी के क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए बिना नोट्स का तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार, मतलब रिवाइज करना काफी डिफिकल्ट है। वो प्री एंड मेंस का जो स्पैन रहता है, मतलब हार्डली 3 महीने का, उसमें अगर नोट्स नहीं रहेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट रिवाइज करने के लिए। तो बाकी के टाइम थोड़ा सा जीएस के नोट्स बना लेना। एंड फिर जो तुम्हारा, मतलब खाना खाते टाइम अगर मतलब अकेले बैठ के खा रहे हो, तो एट वो टाइम पे ऑब्वियसली यू कैन प्ले सम करंट अफेयर्स। जब मेरे टाइम पे मैं बिग पिक्चर देखता था आरएस टीवी का, या फिर एडिटोरियल एनालिसिस देख लिया किसी क्लास का। तो ये चीजें चलते रहेंगी, तो मतलब ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम यूज कर रहे हो प्रिपरेशन में ही। राइट। अब आते हैं फंडामेंटल्स पे, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
फंडामेंटल्स एंड आंसर राइटिंग, उसके बाद एक मिसलेनियस कर लेंगे जिसमें बाकी लेंगे। सो फंडामेंटल्स में पहला क्वेश्चन तो ये है कि somebody is an engineer एंड ही डजंट लाइक या उसको समझ नहीं आता पॉलिटी और हिस्ट्री का थ्योरी में वो कैसे करेंगे। उनको ये भी नहीं समझ आता इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करोगे, स्टैटिक पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टैटिक पार्ट ऑफ पॉलिटी, उस पे क्वालिटी। उनको उनको बोरिंग लगता है या उनका इंटरेस्ट का नहीं है, जो भी उनका रीजन हो सकता है। एंड ही इज ऑल्सो क्लूलेस अबाउट हाउ टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग इन दैट इज लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चन। सो या ओके ओके, देखो यार मतलब हिस्ट्री में तो लर्निंग कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन नाम का कुछ चीज रहेगा नहीं, मतलब एज फार एज आई नो, बिकॉज थोड़ा सा फैक्चुअल एक स्टोरी लाइन रहता है वहां पे, मतलब फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स पे यू कैन नॉट डिराइव अ सर्टेन स्टोरी, मतलब ऐसे कंसेप्ट जैसे पॉलिटी में डेफिनेटली यू कैन डू कि अगर मतलब कुछ पार्लियामेंट का क्वेश्चन है तो फिर वहां से यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ एक आधा मोशन पूछा है तो वह उस पे से यू कैन गूगल एंड देन यू कैन सी द ऑप्शंस अगर प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो तो। मतलब देखो यार रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब बस एनालाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ टॉप मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उसको कितना टाइम देना चाहिए, मतलब जैसे हर जगह पे रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आई डोंट थिंक कि बैठती है एग्जैक्टली, तो नहीं तो फिर मुझे भी नहीं पता कैसे बिठानी है। तो अदरवाइज आई वुड मतलब मैं बाकी चीजें बताता हूँ कि हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री या पॉलिटी पे आप बेटर कैसे कर सकते हो। तो पॉलिटी के लिए तो देखो यार मतलब वो एनसीईआरटी है ना, तो वो एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना पहले, क्योंकि एनसीईआरटीज आर गिवन इन वेरी लूसिड लैंग्वेज। तो एक बार एनसीईआरटी से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा देन यू कैन जंप टू लक्ष्मीकांत। अगर लक्ष्मीकांत डायरेक्टली उठा लिया तो मे बी वो थोड़ा हेवी लग सकता है, यानी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। बट अगर थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाद पढ़ा तो यूल हैव अ ब्रीफ आइडिया कि हाँ बाबा इस टॉपिक के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है, प्रियम्बल में ये है, तो वैसे किया जा सकता है। सेम गोज विद तुम्हारा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो फिर यूट्यूब पे काफी वीडियोस है जिसमें तुम्हारी पूरी हिस्ट्री कवर की गई है। तो फिर एक बार यूट्यूब से पूरा देख लो, उसमें बस स्टोरी लाइन समझो एंड एज अ स्टोरी उसको देख लो, पूरी एक सीरीज ही देख लो 8-10 घंटे की जो भी रहेगी। एंड फिर वो समझने के बाद आफ्टर दैट यू कैन पिक अप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा जो भी बुक से पढ़ना है, तो वैसे कर सकते हो। everyone says that previous year questions should be analyzed, लेकिन कोई बताता नहीं है कैसे करना है। तो एनालाइज कैसे करना आप बताओ कैसे करना है पीवाईक्यू को एनालाइज। है। देखो यार मतलब पीवाईक्यूज को एनालाइज प्री के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। हाँ, तो प्रीलिम्स का एनालिसिस तो देखो ऐसे चलेगा कि जो भी क्वेश्चंस है पूछे यूपीएससी ने, तो यूपीएससी यूजुअली ऐसे आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मिडिवल जैसी चीजों में क्या करता है ना, प्रीवियस ईयर जो भी पूछा है एक तो वही रिपीट करेगा, नहीं तो उसके जो 3 ऑप्शन है उस पे एक आधा क्वेश्चन बना लेगा। तो वो एक बार समझ लेना कि या फिर यूपीएससी मतलब एक तो वो पैटर्न हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन है उसका कंटेंट बना लो एंड जो भी ऑप्शन है उसका भी कंटेंट बना लो, क्योंकि उस पे आ सकता है फिर बाद में। एंड एट द सेम टाइम जैसे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस मतलब बेसिकली समझना है कि टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मिडिवल या एंशिएंट में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अशोका हो गया तुम्हारा, मतलब विजयनगर एम्पायर हो गया तुम्हारा, मतलब अकबर हो गया, ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हें समझेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसे एनालिसिस कर सकते हो। एंड फिर और एक एनालिसिस रहेगा कि यूपीएससी कैसे टाइप के ऑप्शंस देती है एंड यूजुअली उसके आंसर्स कैसे रहते हैं। तो जो अपने को मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब जब अपन क्लासेस के पेपर सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की आदत लग जाती है। अगर बस छोटे से फैक्ट चेंज कर लिया इधर उधर तो अपने को लगता है कि इवन यूपीएससी विल डू द सेम थिंग, एंड वहां पे वी टेंड टू डाउट यूपीएससी का स्टेटमेंट्स। बट जहाँ पे यूपीएससी के जनरल स्टेटमेंट्स रहता है ना, दैट आर यूजुअली राइट, एंड जहाँ पे भी मतलब वो वैसी एक स्ट्रेटेजी रहती है। तो ये चीजें तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद ही समझेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो उसके आंसर्स दे। और प्रीलिम्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि लास्ट के जो वीक रहता है तुम्हारा उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करो टू गेट इनटू दैट फ्रेम ऑफ माइंड विच यूपीएससी इज डिमांडिंग। मेंस के लिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कैसे रहेगा कि अंडरस्टैंड कि यूपीएससी किस क्वेश्चन में से मतलब किस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। तो वहां पे एक तुम्हारा पैटर्न भी बनता है कि इंटरनेशनल रिलेशन से इस बार नेबर्स पूछ लिया तो अगली बार इसे इंस्टीट्यूशन पूछेगा, उसके अगली बार कुछ पूछेगा। तो ये थोड़ा सा 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तो तुम्हें समझेगा कि व्हाट यू कैन मतलब प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं। तो एक तो ये चीज है कि थोड़ा प्रोबेबिलिटी के लिए। दूसरी चीज है कि यूपी मतलब जीएस3 में सपोज पूछ लिया कि कोस्टल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या है, फिर उसमें उसका वे फॉरवर्ड पूछेगा, तो जो भी पूछेगा ना वो समझेगा तुम्हें कि प्रिपेयर करना कैसे है। तो कोस्टल सिक्योरिटी क्या है, उसका इंडिया में उसके इश्यूज क्या है, उसके कुछ वे फॉरवर्ड क्या है, उसके कुछ चैलेंजेस क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए। तो ये जो ब्रॉड फ्रेमवर्क बन रहा है ना, तो ये बन रहा है क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं पहले भी। तो क्वेश्चन देखने पे आपको समझेगा कि आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है।
मतलब बस कोस्टल सिक्योरिटी बोलूंगा मैं तो बस कोस्टल सिक्योरिटी का ही ऐसे डिटेल में क्या पढ़ोगे वो समझता नहीं है। लेकिन जब स्पेसिफिक रहता है कि इश्यूज पढ़ने हैं, चैलेंजेस पढ़ना है, वे फॉरवर्ड पढ़ना है, गवर्नमेंट मेजर्स पढ़ना है, तो ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है बहुत बार, वहां से ये चीजें बाहर आती है। तो दैट्स वाई एनालाइज ऐसे करना है, मतलब कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है and क्या पूछ सकता है। Right. What should be the approach for philosophical essays? कोई स्पेशल सोर्स से रेफर कर सकते हैं? देखो यार, मतलब ऐसे कुछ पूछ रही तो यूपीएससी फिलोसॉफिकल एसेज ही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो एक चीज है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। कि ऐसे का होता है ऐसे कि मतलब व्हेन यू आर राइटिंग योर फर्स्ट मेंस, तो अपन मेंस तक क्या होता है ना, मतलब प्री क्लियर होने तक अपन बाकी सब करते रहते हैं, जीएस हो गया, ऑप्शनल हो गया, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज हो गई। लेकिन ऐसे एक ऐसी चीज है जो छूट जाती है। तो एक मतलब अच्छा स्कोर करने के लिए, ऐसे का ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, फिलोसॉफिकल पे आऊंगा फिर से। बट ओवरऑल ऐसे में अच्छा स्कोर करने के लिए थोड़ा सा रेगुलरली कंसिस्टेंटली ऐसे लिखते जाओ, मतलब 7 दिन में एक, 15 दिन में एक, वॉट एवर सूट्स यू। तो एक वो रहेगा। फिलोसॉफिकल एसेस के लिए तो देखो, मतलब इसके जो विनय सर है उनका एक वीडियो है, प्लस शिवरा रंजन मैम के पास एक सर है, उनका एक वीडियो है। तो एटलीस्ट ये 2 वीडियो देख लोगे तो वहां पे उन्होंने 1-1.5 घंटा डिटेल में समझाया है कि फिलोसॉफिकल एसेस को अप्रोच कैसे करना है। तो दैट कैन हेल्प यू। Right. Somebody gets totally blank while writing answers, जबकि उनको आंसर आते होते हैं, बट एग्जाम हॉल में हम्म या मॉक टेस्ट में ब्लैंक हो जाते हैं, तो उसका हम्म क्या हम्म, हम्म। रीजन है और वो कैसे इम्प्रूव करें? देखो वो मतलब इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर फियर। अगर फाइनल एग्जाम में हो रहा है तो वो ऑब्वियसली तुम्हारे फियर की वजह से रह सकता है। इवन मॉक टेस्ट में भी हो रहा है, तो अगर ऐसे कुछ हो रहा है कि पहले वाले एग्जाम में मार्क्स कम आ गए एंड यू आर गेटिंग, मतलब उसका अगर बर्डन है तुम्हारे ऊपर कि मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, एंड फिर मतलब कैसे होगा आगे का ये सब कुछ, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब यू यूजुअली गेट ब्लैंक व्हेन यू आर अंडर प्रेशर एंड यू आर अंडर फियर। तो मॉक टेस्ट के लिए तो डरने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इट्स नथिंग, ऐसे बस जाके लिख के आना रहता है, जस्ट टू गेज योर परफॉर्मेंस। एंड उसका ऑल्सो आई वुड से कि जो मेडिटेशन वाला पार्ट बोल रहा हूँ मैं, अगर मेडिटेशन रेगुलरली करोगे ना तो फिर यू वोंट बी फियर्ड ऑफ दिस थिंग्स। एंड एक तुम्हारा प्रेशर मेंटेन या प्रेशर हैंडल करने का जो मतलब थिंग रहता है, तो यू विल गेट दैट। तो रेगुलरली मेडिटेशन करो थोड़ा सा। राइट, एनसीईआरटी को फटाफट खत्म करने की बेस्ट अप्रोच क्या है, और आंसर राइटिंग कब शुरू करें, एनसीईआरटी खत्म करने के बाद कि एनसीईआरटी से पहले? नहीं, मतलब आंसर राइटिंग तो आई वुड सजेस्ट के बाद में ही, मतलब इतना एनसीईआरटी पढ़ने से भी पहले आंसर राइटिंग लिखना है इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इवेंचुअली व्हेन यू हैव थोड़ा सा कंटेंट तो भी चाहिए, मतलब टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड टू राइट समथिंग। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करो आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। एंड एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सही स्ट्रेटेजी या सही अप्रोच तो वही है, मतलब एक तो समझ लो कि पढ़नी कौन सी है, मतलब बहुत सारी सभी पढ़नी है ऐसा भी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट वाली है उसको जस्ट गो थ्रू, सिंगल रीडिंग तो पहले मार लो, मतलब ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है। इफेक्टिव वे तो यही है कि पहले एक बार पहली रीडिंग में रीड करो, हाईलाइट करो, दूसरी रीडिंग में नोट्स बनाओ, तीसरे टाइम रिवाइज करो। तो ये रीड, हाईलाइट एंड मतलब नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन, यही इफेक्टिव है। So we can club three questions. Three of them are giving their fourth attempt next year. All three of them ओके। giving their fourth attempt next year. उनको अभी ये नहीं समझ आ रहा। एक का है कि is mains test series important before prelims? Okay. हम्म एक कह रहा है कि should I make notes या मैं मेंस बिना नोट्स के भी दे सकता हूँ? हम्म ओके। और एक पूछ रहा है कि ओवरऑल मुझे बताओ कि करंट अफेयर्स को लेके मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअली, फोर्थ अटेम्प्ट के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलत किया। नोबडी हैज मेंशन व्हिच ठीक है स्टेज ना। दे हैव रीच्ड, दे हैव जस्ट ठीक है ठीक है ठीक कि हमने हमारा चौथा अटेम्प्ट है। तो एक तो ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करूँ टेस्ट क्या? सीरीज। नहीं नहीं, समझे समझे समझे। हाँ बोलो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। या तो देखो, मतलब प्रीलिम्स के पहले टेस्ट सीरीज करना एडवाइजेबल इसलिए है क्योंकि टेस्ट सीरीज का एक टाइम टेबल रहेगा। अगर तुम्हारा मतलब अगर तुम 4 लोग आ लोग हो तो फिर तो बात ही अलग है, बट इफ यू हैव अ ग्रुप, तो ग्रुप रहने पे तो भी यू कैन मेक अ टाइम टेबल एंड तुम्हारा थोड़ा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर अकेले पढ़ रहे हो देन आई वुड एडवाइस कि अगर फाइनेंशियली थोड़ा कंडीशन ठीक है तो गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या है ना, मतलब वही है कि फेब्रुवरी मार्च तक थोड़ा सा फोर्थ अटेम्प्ट है इसलिए फेब मार्च तक टेस्ट लिख सकते हो। एंड टेस्ट लिख के थोड़ा प्रैक्टिस होगा, जो नोट्स नहीं है वो नोट्स बन जाएंगे, थोड़ा आंसर राइटिंग इंप्रूव होगा, फीडबैक पे काम करते रहोगे तो जो काम प्री और मेंस के बीच में करना है वो आधा काम तुम्हारा अब भी हो जाएगा, अगर अभी एक टेस्ट सीरीज लिखोगे तो। अगर अभी एक टेस्ट सीरीज नहीं लिखोगे तो फिर आफ्टर फोर्थ अटेम्प्ट, मतलब आफ्टर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट, मतलब एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही बहुत डिफिकल्ट है इतने। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज कि क्वेश्चन वाज कि उनका जो करंट अफेयर्स को लेके करंट स्ट्रैटेजी है अफेयर्स। वो कैसे बनाए, तो हम्म उनको समझ नहीं आ रहा कि वो पोर्ट्रेट में क्या गलत कर रहे हैं। हम्म सो हम्म, व्हाट शुड ही डू?
देखो यार, मतलब करंट मतलब गलत तो बाकी चीजें भी हो सकती है कि ऑप्शनल हो गया या जीएस का बाकी का प्रिपरेशन हो गया। करंट अफेयर्स पे पर्टिकुलरली बात करना है तो वही है, मतलब मेंस में अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा इशू बेस्ड करंट अफेयर्स पे ही फोकस करने की जरूरत है। मतलब बहुत ज्यादा फैक्ट्स और इन चीजों में मत पड़ो। फिर मतलब वही है कि इशूज उठा लो, इशूज पे तुम्हारा थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, थोड़ा एनालिटिकल व्यू पॉइंट करो। थर्ड अटेम्प्ट हो गया तो डिस्कशन के लिए भी काफी कंटेंट रहेगा तुम्हारे पास, तो हम्म। डिस्कस करो अमंग योर फ्रेंड, 3-4 लोग जो भी रहेंगे। एट द सेम टाइम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एंड फिर उसका कुछ मॉडल आंसर देख लो, फिर देखो कि तुम्हारा इंट्रो, तुम्हारा कंक्लूजन, तुम्हारी बॉडी उससे मैच हो रही है क्या, या क्या ऐड कर सकता था, क्या ऐड कर सकती थी, वट एवर। If we are तो reading दैट news, वुड बी वन थिंग। yeah, if we are subscribed, or if we are attending Samachar Bandhan, should we read newspapers? देखो मतलब अगेन आई वुड से कि अगर इशू बेस्ड एडिटोरियल्स है ना, एडिटोरियल्स पढ़ो, क्योंकि एडिटोरियल से जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, एडिटोरियल से जो तुम्हारी पर्सनैलिटी बनेगी ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग सिविल सर्वेंट। क्योंकि थोड़ा एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड जरूरी है, मतलब स्पून फीडिंग चलता नहीं है। तो मतलब बाकी करंट अफेयर्स के लिए ठीक है, समाचार मंथन में एडिटोरियल्स का एनालिसिस आ रहा है तो वो भी पढ़ो, लेकिन एक बार एडिटोरियल्स तो खुद से तो भी पढ़ो। वो ऐसे में भी काम आएगा, वो तुम्हारे कॉम्प्रहेंशन में काम आएगा, और तुम्हारी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, तुम आंसर्स बेटर लिखोगे, वहां पे इंट्रो में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिलेंगे, कुछ अच्छे केस स्टडीज मिलेंगे, काफी कुछ रहता है यार, मतलब न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स में स्पेशली। एक तो न्यूज वो मिस मत करो। एक न्यूज़पेपर से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसने बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है। हाउ टू, आप सुनना ध्यान से, हाउ टू हाँ, डेवलप न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट, राइट वे ठीक टू है, स्टार्ट इट, शुड वन ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम पेज वन और एडिटोरियल, या तो पेज वन से शुरू करें न्यूज़पेपर को, एडिटोरियल से शुरू करें। नोट मेकिंग हम्म, फ्रॉम न्यूज़पेपर, शुड वन नोट इंपॉर्टेंट लाइंस दैट कैन बी यूज्ड इन मेंस, or will it get developed over time after reading? Should one note down factual info also from the newspaper? ये, और after reading newspaper one should go for magazines too. Should one make अच्छा, notes out of magazine also? तो बाप रे, वो बेसिकली, काफी हाँ, बड़ा हो वो काफी गया। एक बड़ा ही हो एक गया। एक लेते हैं अपन, एक नहीं, एक पूछो, एक एक बताते उन्होंने एक ही में लिख दिया है एक्चुअली सारा ना। तो मैं सोच रहा हैं। हूँ वो, मैं इसको समराइज कर देता हूँ आपके लिए। एक, अब हाँ, वो पूछ रहे हैं नोट न्यूज़पेपर शुरू कैसे करना है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पेज से ओके। शुरू करना है, एडिटोरियल से शुरू करना है, और अच्छा, नोट्स वो मैं कब, बताता हूँ इतना। और नोट्स कब बनाने हैं, बस अच्छा, उनके। ठीक है, हाँ। अच्छा, तो देखो मतलब न्यूज़पेपर ऐसे, मतलब मैं पर्सनली तो एडिटोरियल से स्टार्ट करता था यार, क्योंकि देखो ऐसे पूरा ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया and फिर अगर लास्ट में एडिटोरियल्स रखा ना, तो फिर कभी कभी इट कैन बी वेरी बोरिंग, कि पूरा एडिटोरियल, कभी कभी बहुत बड़े बड़े एडिटोरियल्स आते हैं। तो जब आप फ्रेश हो ना, तो फिर एडिटोरियल्स पढ़ो, क्योंकि बाकी न्यूज क्या है ना, बाकी न्यूज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहती है क्योंकि वो काफी डाइवर्स है। एडिटोरियल इज समथिंग जिसपे एक ही चीज पे, सपोज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे उसने बहुत सारा लिखा रहेगा। तो वो कैसे रहेगा ना, मतलब अगर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अगर उस पे जा रहे हो, तो यू कैन फील कि ये क्या चल रहा है कितने टाइम से। बट अगर फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हो तो ये मतलब यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो पहले एडिटोरियल्स करो, उसके बाद जस्ट ग्लांस थ्रू बाकी करंट अफेयर जो भी है। नोट्स कब बनाए, वो फैक्चुअल नोट्स अलग बनाए और मेंस के नोट्स अलग बनाए क्या? देखो फैक्चुअल नोट्स तो ऐसा है कि फैक्ट्स के लिए काफी इंस्टीट्यूट्स आजकल वो डॉक्यूमेंट ही दे रही है फैक्ट्स का। जैसे कुछ मतलब मैंने विजन का एक देखा था, जीएस किया था, तो फिर वहां से हो जाएंगे तुम्हारे बेसिक फैक्ट, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। मतलब कुछ बहुत ही यूनिक फैक्ट मिल रहा है तो ही फैक्ट निकालो, वरना बस बहुत सारे फैक्ट्स भी मत कलेक्ट करके बैठो, क्योंकि कोर कंटेंट इज अ डिफरेंट थिंग, फैक्ट्स इज वैल्यू एडिशन जैसा। And तो after फिर after reading newspaper, one should also go for magazines also. अच्छा, हाँ मतलब करना पड़ेगा, मतलब देखो ऐसा है कि न्यूज़पेपर से अगर नोट्स बना रहे हो, मतलब उतनी जरूरत नहीं रह सकती। लेकिन मैं क्या करता था ना, मैं एडिटोरियल्स पढ़ के एडिटोरियल्स के नोट्स बनाता था, एंड देन आई वुड जंप टू 2 करंट अफेयर्स के मैगजीन, एंड मतलब फॉर अ मंथ, एंड फिर वो अच्छे से कर लेता था कॉम्प्रिहेंसिवली, उसके नोट्स बनाता था मैं। हाँ, मतलब जरूरत है। ये भी यही पूछ रहे हैं कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हम्म, के बाद क्या मैं मैगजीन पढूं और मैगजीन के भी नोट्स बनाऊं क्या? लेकिन अगर कंटेंट कुछ ऐसा है जो तुम्हें लग रहा है कि यूपीएससी पूछ सकती है, देन यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। हम्म। मतलब तो नोट्स भी डिफरेंशिएट करोगे, एडिटोरियल्स के नोट्स अलग बोल रहा हूँ मैं, एडिटोरियल्स के नोट्स तो बनाने ही है, क्योंकि वहां पे काफी क्वालिटी कंटेंट मिलेगा मीन्स के लिए। एंड फिर बाकी जो न्यूज जो रहती है, फिर उसमें से यू कैन रिलाई अपॉन समाचार मंथन या किसी इंस्टीट्यूट पर। थोड़ा सा आप नोट मेकिंग के बारे में ही बता दो, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज ठीक हैं। है। नोट मेकिंग, एक तो बिना नोट मेकिंग क्या मीन्स निकलेगा? कैन वी राइट मीन्स विदाउट नोट मेकिंग? नहीं, ठीक है, नहीं, नहीं, मतलब मतलब ऑफ आई कोर्स नॉट, पर्सनली या, थिंक कि नहीं, हाँ। राइट। सो बट हाँ, क्वेश्चन था तो मैंने पूछ लिया। और आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करें बिकॉज ऑफ नोट्स? अगर हम नोट्स बना रहे हो तो उसको यूज कैसे करें हम्म, आंसर राइटिंग? ओके, तो देखो नोट्स ही कुछ ऐसे फॉर्मेट में बनाओ ना, जिसमें यू आर फोकसिंग अपॉन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। मतलब कुछ ऐसे पैटर्न में अगर बनाओगे जैसे आंसर लिखना है,
तो फिर वो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो मतलब फिर बाद में वहां पे सोचना नहीं पड़ता है आंसर लिखते टाइम। जैसे कुछ भक्ति भक्ति मूवमेंट पे आ गया, तो भक्ति मूवमेंट पे एक रेडी इंट्रोडक्शन रहेगा तुम्हारे पास नोट्स में, एंड फिर भक्ति मूवमेंट का एक ऑन द सेम लाइंस कुछ अच्छा कंक्लूजन भी बना लेना। तो ये नोट्स मेकिंग के टाइम पे मेंस के हिसाब से तो भी ऐसे नोट्स बनते हैं कि जिसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो भी, जहाँ पे प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स है वहां पे अच्छे इंट्रो कंक्लूजन बना के रखो। एंड बॉडी के पार्ट में तो वही यार, बॉडी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने का ट्राई करो कि जो भी रहेगा I उस like पे। how very big questions are coming up. So yeah, what somebody has, they are literally writing their stories, which is very good. Which is very ठीक है ना, good. They ठीक है are ना, हाँ। trusting you a lot with their stories. हम्म। Sir, how to read basics in an effective manner? In case I have already read 2 3 times a book already, I'm reading this for memes only. For example, if I हम्म। want to complete Lakshmikant in 1 month, in first हम्म। 15 days plus 10 days plus 5 days, is this approach good? क्या वो हम्म। लक्ष्मीकांत को 1 महीने में खत्म करना चाहिए? अगर वो खत्म करते हैं तो किस स्टेज पे उनको नोट्स बनाने चाहिए? क्वेश्चन ओके। समझाओ या समझ गए? नहीं नहीं, समझ हो गए, गया ठीक समझ गया, ठीक थैंक यू। ठीक। तो देखो मतलब फर्स्ट रीडिंग में तो नोट्स बनाओ मत, क्योंकि बोल रहा है क्या है, जो भी कंसेप्ट है उसके अंदर के, तो फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। अब ये फर्स्ट रीडिंग से पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, ताकि तुम्हें समझेगा कि हाईलाइट भी क्या करना है। मतलब पूरा हाईलाइट नहीं करना है, थोड़ा सा तुम्हारा एक पार्ट, जैसे आपने बोला कि मतलब फर्स्ट रीडिंग 15 डेज में, उसके बाद 5 5 डेज प्लस 5 डेज। तो हाँ मतलब वैसा अप्रोच सही है जैसे तुम्हारा रहेगा। मतलब जस्ट ट्राई टू, मतलब जो एक पहली बार जितना टाइम लगा है उसका हाफ करते जाना नेक्स्ट रिविजन के टाइम पे। एंड बाद में इवेंचुअली तो 3 3 4 दिन में भी लक्ष्मीकांत हो जाती है, मतलब फाइनल स्टेज पे, या उससे जल्दी भी हो जाती है। अगर नोट्स बनाओगे ना तो फिर तो 1 1.5 दिन में भी हो जाती है। मतलब प्रीलिम्स के पहले 1 दिन में लक्ष्मीकांत हो जाता था मेरा। लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक हैं और वैल्यू एडेड मटेरियल होते हैं विजन के, वाजीराम के, उनके हम्म। भी नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट क्या है? ओके, somebody saying that these topics like disaster management, value added material, each topic is given in 2 pages. Will highlighting these topics and revising, will it work? क्योंकि मैं एडिटोरियल भी पढ़ता हूँ और वो सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड है। मतलब बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आपके GS2 हम्म। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक, क्या उनके लिए वो हम्म। न्यूज़पेपर स्किप कर सकते हैं? उनका क्वेश्चन ये है सिंपल। उनके देखो लिए वो अपने वैल्यू न्यूज़पेपर एडेड में, मटेरियल पढ़ सकते हैं क्या? मतलब अगर ऐसे पूरा स्टैटिक टाइप रहेगा वैल्यू एडिशन मटेरियल, तो वहां पे तुम अगर सेम कंटेंट अगर लग रहा है कि एडिटोरियल में सेम कंटेंट रिपीट हो रहा है, देन फिर मत, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बिकॉज यू हैव द सेम कंटेंट ऑलरेडी। लेकिन अगर मतलब कुछ ऐसा केस स्टडी टाइप कुछ दिया है एडिटोरियल में, या कुछ जस्ट ऐसे फास्ट ग्लांस कर लेना कि एडिटोरियल में कुछ नया मिल रहा है क्या, जैसे फ्लड कंट्रोल के लिए, नहीं तो साइक्लोन्स के लिए अगर उड़ीसा का कुछ केस स्टडी आ रहा है एंड वो तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर वो तुम निकाल सकते हो वहां से। मतलब देखो व्हाइट एंड ब्लैंक में कुछ है नहीं, मतलब पूरा ऐसे 0 and 1 में कुछ है नहीं, कुछ ऐसे मिडल पाथ रहता है। तो वो तुम्हें खुद का डेवलप करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कंटेंट कितना है, किस चीज का कंटेंट नहीं है। जहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू एडिशन नहीं है वहां पे फिर एडिटोरियल्स पढ़ के वैल्यू एडिशन निकालो। जहाँ पे कोर कंटेंट ही नहीं है वहां पे तो पूरा एडिटोरियल पढ़ के कोर कंटेंट पे निकालो। तो ऐसे मतलब कुछ कॉम्बिनेशन रहता है। राइट। somebody saying कि वो 2 बार रिवीजन कर चुकी हैं लेकिन दोनों बार उनको इक्वली टाइम लगा है, कोई टाइम में हम्म। इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। सो क्या ये हम्म। फिजिबल है करना बिफोर प्रीलिम्स एंड मेंस? एंड टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए स्पेशली? ओके। तो देखो अगर रिवीजन के लिए सेम ही टाइम लग रहा है ना, तो आई वुड से कि मतलब वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि रिवीजन के लिए मतलब साइमल्टेनियस, मतलब आफ्टर ईच रिवीजन तुम्हारा टाइम कम होते जाना चाहिए। कि अगर 10 दिन लगे तो फिर अगले टाइम 5 ही लगने चाहिए। अगर 10 दिन लगे हैं, मतलब अगर 10 दिन लगाने के बाद फिर से 10 दिन लगे, तो फिर पहले समझो कि मतलब आपका टाइम जा रहा किधर है। अगर एक आधे पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है या उस चीज के नोट्स ही नहीं है, तो पहले नोट्स बना लो, या उसका कंटेंट पहले समझ लो अच्छे से। अगर बुक से नहीं समझ रहा है तो यूट्यूब पे सर्च कर लो। यूट्यूब पे काफी वीडियोस रहते हैं, जैसे इकोनॉमी जैसी चीज यूट्यूब पे काफी अच्छे से समझाई रहती है। तो वैसे करके पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। बस अगर मतलब पढ़ने के लिए अगर नोट्स भी नहीं है, कुछ हाईलाइट भी नहीं किया है, तो तुम्हारे सारे रिविजन को सेम ही टाइम लगेगा। इसलिए हाईलाइट करना, नोट्स बनाना, नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो एंथ्रो के मेरे जो पहले वाले नोट्स थे, मतलब काफी कॉम्प्रिहेंसिव वाले, वो थे कुछ अराउंड 600 पेजेस के। फिर वो 600 को मैंने शॉर्ट नोट्स बना के उसको 150 पेजेस में किया था। एंड फिर एकदम ही मेंस के पहले उसको मैंने 40 पेजेस में किया था। तो वो 40 पेजेस आई यूज टू रीड इन सम 4 5 आवर्स। तो ये रहता है, मतलब ऐसे पूरा एक प्रोसेस चलेगा कि नोट्स बनाओ, नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी बस इंपॉर्टेंट चीजें हैं
तो ये मतलब मेंस के लिए ज्यादा यूजफुल है ऐसी चीज, शॉर्ट नोट्स एंड ऑल। प्री के लिए तो इतना लगता नहीं है। हाउ मच गैप बिटवीन रिविजन्स टू गेन मैक्सिमम रिटेंशन? वो उन्हीं का क्वेश्चन है जिन्होंने हम्म, कहा था ना 2 बार रिवाइज कर नहीं पाए, उन्होंने कहा है कि वो कितना गैप रखे रिविजन्स के बीच में ताकि वो रिटेन ज्यादा कर पाए। देखो ये भी हो सकता है कि मतलब तुम्हारा रिवीजन का गैप ही काफी लंबा होगा, इसलिए तुम्हें फिर से उतना टाइम लगा होगा। तो जस्ट रिड्यूस द गैप की मतलब आइडियल गैप ऐसे बोल नहीं सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ 10-15 दिन के इसमें फिर से पढ़ लो। तो फिर मतलब अगर इतना टच में रहेगा ना तो फिर काफी रिविजन भी हो जाएंगे एंड याद भी रहेगी चीजें। सर 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, वो ले लो। एक कह रहे हैं कि वो प्रीलिम्स का मॉक देते हैं, बट व्हाट उनको अपने फीडबैक को कैसे एनालाइज करना चाहिए प्रीलिम्स के मॉक के फीडबैक को। दूसरे कह रहे हैं कि एक वो जो प्रीलिम्स देते हैं, चौथा प्रीलिम्स देने वाले नेक्स्ट ईयर, फियर की वजह से हम्म उनका एग्जाम इफेक्ट हो जाता है। वो प्रिपेयर्ड रहते हैं लेकिन वो डरते बहुत है, इस वजह से हम्म वो हम्म प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो दोनों प्रीलिम्स रिलेटेड हम्म क्वेश्चन आंसर करो। ओके। तो पहला वाला क्वेश्चन था कि मतलब जो भी फीडबैक है या जो भी टेस्ट है उसको हाँ, एनालाइज कैसे करना है। राइट राइट। तो देखो मतलब प्रीलिम्स में एनालिसिस क्या रहेगा बेसिकली कि चेक करना है कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस सही था क्या। मतलब कि जो भी तुमने सोचा एंड व्हेन यू केम टू आंसर, तो वो थॉट प्रोसेस सही था कि ये पहले चेक करोगे। मतलब कि वहां पे आपको समझ जाता है कि क्वेश्चन देखने के बाद तुमने जो ऑप्शन ऑप्ट किया है एंड जो सही आंसर है, तो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि अच्छा अपन गलत सोच रहे थे, ऐसा ऐसा कुछ सोच लिया था इसलिए गलत हुआ। तो वो एक पैटर्न समझ लो कि थॉट प्रोसेस कैसी रहनी चाहिए। वो यूपीएससी के प्रीलिम्स का तो वैसा ही है यार, एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस अगर मतलब बैठ गया ना तुम्हारा प्रीलिम्स के लिए, तो फिर प्रीलिम्स आराम से क्लियर होता है। लेकिन फॉर गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस काफी एफर्ट है, मतलब उसके लिए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके उसको एनालाइज करना पड़ता है काफी टाइम। और एनालिसिस का पार्ट रहता है कि सिले मिस्टेक्स कर रहे हो क्या। क्योंकि देखो मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं बाउंड्रीज पे, बाउंड्री पे रहना इज जस्ट 1 मार्क हियर एंड देयर। तो वो अगर एक भी सिले मिस्टेक किया तुमने, तो 2 मार्क का क्वेश्चन प्लस 0.66 वो निगेटिव। तो ऐसे 2.5-3 मार्क तो वहीं पे जा रहे हैं, तो यू विल बी इजीली आउट ऑफ द रेस। तो वो एक एनालाइज करो कि सिली मिस्टेक्स कर रहे हो क्या। सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो जैसे पेज पे लिखते जाओ तुम्हारे मिस्टेक्स क्या क्या है। मतलब मेरे पास प्रॉपर एक A4 शीट रहता था प्रीलिम्स का अगला टेस्ट देने से पहले, उस पे सारे मिस्टेक्स लिखे रहते थे कि मिस्टेक्स क्या क्या किया है मैंने पहले के सारे टेस्ट में। मतलब एक ही टेस्ट में नहीं, हर टेस्ट का उसमें अपडेट करते रहने का कि वाइल्ड गेस किया क्या। तो वाइल्ड गेस करना नहीं है क्योंकि फैक्चुअली चीजें वहां पे कुछ पता ही नहीं है, तो वाइल्ड गेस करने का मीनिंग नहीं है। मतलब अगर ऐसे बोला जाता है कि 90 से ऊपर अटेम्प्ट करो, लेकिन 90 से ऊपर अटेम्प्ट करने के लिए अगर वाइल्ड गेस कर रहे हो तो फिर उसकी कुछ गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें पॉजिटिव मार्क्स ही देगा करके। कुछ अगर एनालिटिकल है, कुछ जहाँ पे तुम गेस कर पा रहे हो, तो वहां पे मतलब ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये तुम्हारा सब रहेगा एनालिसिस का पार्ट, के प्रीलिम्स का जो भी टेस्ट हो गया उसका एनालिसिस कैसे होना चाहिए। हाउ एंड मच, सॉरी हाँ, प्लीज प्लीज हाउ गो। मेनी। नहीं, आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे क्या? आई नहीं नहीं इंटरप्टेड। मतलब चलेगा, एक्चुअली स्विच ही ओके कर रहा था मैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके ओके। हाउ मेनी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बिफोर गिविंग प्रीलिम्स अपार्ट फ्रॉम पीवाई? मतलब प्रीलिम्स से पहले ओके, कितने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लगा ले पीवाई क्यू टच करने से पहले? देखो मतलब अगर सेक्शनल दे रहे होंगे ना तो फिर ये बहुत ज्यादा हो सकता है नंबर। तो जो बिगिनर्स है वो सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उनके 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं वो बस फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस कर लेना है। मतलब लगभग हर एक क्लास अपना 10-10 फुल लेंथ टेस्ट तो भी रिलीज करता है, तो ऐसे कुछ 20-25 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए तो यू आर गुड इनफ एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स आई थिंक। उतना ठीक रहेगा। राइट। प्रीलिम्स को जो बिगिनर्स हैं वो प्रीलिम्स की फर्स्ट टेस्ट सीरीज कब लगाए? अच्छा, प्रीलिम्स की फर्स्ट सीरीज बिगनर्स कब लगाए। बिगनर्स तो पैरेलली थोड़ा कर सकते हैं, मतलब जो भी अगर कुछ इंटीग्रेटेड मतलब कर रहे हो प्रिपरेशन, अगर क्लासेस ज्वाइन किए हैं या किसी के पास टेस्ट सीरीज चल रही है, तो फिर वो तो स्टार्टिंग से कर सकते हो थोड़ा। अगर वैसे नहीं कर रहे हो तो फिर लास्ट के बिगिनर्स तो भी एटलीस्ट 4 महीना निकालो लास्ट के, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में। वो 4 महीने में फिर जैसे ही कंटेंट पढ़ रहे हो वैसे ही तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट कर दो, मतलब फेब में टेस्ट स्टार्ट कर दो फिर वो केस में। अदरवाइज थोड़ा सा मतलब 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थोड़ा रेगुलरली अब भी से किया तो भी बेटर ही है बिगिनर्स के लिए। शुड वी डू? अच्छा, और एक वो क्वेश्चन रह गया था जिन्होंने बोला था कि उनका फियर कैसे रिजॉल्व हाँ, करना है। फेयर वाला वो आ रहा था, आफ्टर ठीक है। वो फोर्थ अटेम्प्ट वाला, हाँ। क्योंकि देखो मतलब फियर इस चीज की वजह से भी रहेगा बिकॉज ऑलरेडी क्लियर हुआ नहीं है प्रीलिम 2-3 बार। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये थोड़ा सा दिमाग से हटा दो कि मतलब प्रीलिम्स का जो पीछे के फेलियर्स का बर्डन है वो थोड़ा साइड में करके अगर दोगे ना अटेम्प्ट, तो दैट कैन हेल्प यू। क्योंकि देखो मेरा खुद का प्रीलिम्स हुआ नहीं था पहले 2 बार, लेकिन फिर थर्ड टाइम मैं ऐसे ही माइंडसेट के साथ गया था कि इस बार जब प्रीलिम निकालूंगा तो मेंस इंटरव्यू सब कुछ निकालूंगा, एंड थर्ड में फिर फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। तो फिर ऐसे कुछ अप्रोच रख के जाओगे फाइनल एग्जाम में कि इस बार निकलेगा, एंड मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच अगर रहेगा कि इस बार निकलेगा तो मेरा मेंस रेडी है, ऑप्शनल रेडी है, जो भी तुम्हारे पॉजिटिव साइड्स है ना वो सब हाईलाइट करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो खुद में।
एंड देन ऑब्वियसली यू कैन ओवरकम फियर। और अगर पढ़ना ही है तो फिर फियर ओवरकम करने के लिए MS धोनी की जो बायोग्राफी है, तो फिर वो एक पढ़ लो यार, उसमें काफी अच्छे से दिया है कि व्हाई यू फियर अ पर्टिकुलर थिंग, उसको ओवरकम कैसे करना है, तो वो थोड़ा डिटेल में अच्छा हो जाएगा। राइट सर, PYQ को लेके कितना पीछे जाना चाहिए प्रीलिम्स में भी, और मेंस में क्या 2013 से पहले के PYQ पढ़ने चाहिए? नहीं मतलब लास्ट के 10 साल पकड़ लो ऑन एन एवरेज मेंस के लिए। तो मेंस के लिए वो ये 2013 के आगे का ही हो जाएगा, वो जब से एथिक्स आया है तब से कर लो, काफी है। एंड फिर प्रीलिम्स के लिए तो उससे भी पीछे जा सकते हो, मतलब प्रीलिम्स के लिए 20-25 साल किया तो भी चलता है, क्योंकि वो क्वेश्चन है वैसे, उसमें कुछ बदल रहा नहीं है स्टैटिक क्वेश्चंस में। तो एंशंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ये क्वेश्चंस के लिए हेल्प हो जाएगा अगर ज्यादा कवर करोगे तो। हाउ डू वी डील विद एंजाइटी बिफोर एग्जाम? एंजाइटी बिफोर एग्जाम, तो देखो मतलब अगर फाइनल एग्जाम के लिए एंजाइटी होगा ना तुम्हें, तो फिर उसका ऐसे एक दिन का सोल्यूशन है नहीं। उसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो कि है तुम्हारा मेडिटेशन, जो कि मैं ऑब्वियसली बोलते रहता हूँ बहुत बार। अगर बहुत बार बोल रहा हूँ ना, तो फिर उससे इरिटेट मत हो, क्योंकि वो उतना यूजफुल है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन से एक्चुअल हेल्प हुआ है मुझे। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि एक 20-25 मिनट, अगर 20 मिनट, 25 भी मत पकड़ो, एक 20 मिनट रेगुलरली मेडिटेट करोगे ना, तो फिर ये एंग्जाइटी हो गया तुम्हारा, थोड़ा सा निगेटिविटी हो गया, नर्वसनेस हो गया, ये चीजें आती नहीं है। एंड थोड़ा सा जो भी मतलब फाइनल एंग्जाइटी मतलब कवर करने के लिए तो यही है कि जो तुम्हारे पॉजिटिव्स है या तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है, उस पर ज्यादा फोकस करो। एंड उसको हाईलाइट करो कि मतलब जब ऐसी सिचुएशंस आई थी तो हाउ यू डेल्ट विद इट प्रीवियसली, मतलब व्हाई यू आर स्ट्रांग एज अ पर्सन। उसको जब तुम थोड़ा सा एनालाइज करोगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करोगे ना उस पे, तो वो चीजों के दम पे थोड़ा एंग्जाइटी कम होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो कई बार हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होता, व्हाट इज द बैकग्राउंड information of that article. So somebody is asking, should he research that background first while reading, or he should move on the next article and research the background later? देखो यार मतलब अगर तुम्हें इशू इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, तो फिर रिसर्च करना बनता है, मतलब कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आधा घंटा, एक्स्ट्रा 15 मिनट भी जा रहे हैं वो टॉपिक कवर करने के लिए, तो भी चलेगा, मतलब नॉट अ बिग डील। लेकिन वही है, थोड़ा सा समझो कि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्या। अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो बैकग्राउंड चेक होना चाहिए उसका। My optional is geography, but I'm not consistent due to my master's final year. If I start from this point, should I give attempt in 23? This would be my fifth attempt. I was not able to clear prelims, missed by few marks. Uh, इनका ऑप्शन ओके मतलब, ज्योग्राफी है, हाँ, और ये हाँ हाँ मास्टर्स हाँ। के चक्कर में कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या इनको अपना हम्म। 5वां अटेम्प्ट 23 में देना चाहिए, क्योंकि वो पिछले कुछ ही मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? देखो यार मतलब कुछ ही मार्क्स से हुआ नहीं रहेगा, ऑप्शनल अगर तगड़ा रहेगा ना तो फिर देना चाहिए। क्योंकि आई पर्सनली नो, मेरा एक फ्रेंड है विनायक महामुनि करके, जिसने 4 प्रीलिम्स नहीं हुए थे, फिफ्थ अटेम्प्ट में 95 रैंक लाया था। लेकिन उसको पता था कि उसका मेंस का कंटेंट सॉलिड है। जैसे मेरे 2 अटेम्प्ट में पहले प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो मुझे पता था कि जिस दिन मैं मेंस लिखूंगा, तो थोड़ा सा मेंस पे अगर कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि तुम्हारा ऑप्शनल अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड है, ऑप्शनल का प्रीलिम्स से पहले अगर एक पूरा टेस्ट सीरीज लिखना पड़ेगा, अगर अटेम्प्ट देने का सोच भी रहे हो, तो फिर प्रीलिम्स से पहले ट्राई टू मेक श्योर के मेंस का एंड मतलब मेंस के GS का एंड ऑप्शनल का दोनों का एक एक टेस्ट सीरीज लिख दो। ताकि क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, फिफ्थ अटेम्प्ट है तो 3 महीने काफी है उसके लिए। तो फिर फरवरी एंड तक तो आप मेंस का अच्छे से पढ़ सकते हो। तो वही अगर देने का है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि मेंस में कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे, मतलब खुद के मेंस में। अगर उसके नोट्स रेडी है GS के, तुम्हारा ऑप्शनल भी अच्छा है, टेस्ट सीरीज लिखे हो या लिखने वाले हो, तो फिर यू कैन डेफिनेटली राइट एन अटेम्प्ट। एंड अगर घर से ऐसा कुछ प्रेशर है या कुछ है, तो फिर यू कैन रिकंसिडर गिविंग सम अदर एग्जाम जो तुम जल्दी से क्लियर करने के चांसेस है। एंड फिर वो क्लियर करने के बाद फिर से जंप बैक टू UPSC। राइट। मेंस के लिए लक्ष्मीकांत इम्पोर्टेंट है क्या पॉलिटी में, और स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने चाहिए क्या प्रीलिम्स के लिए? हाँ है, मतलब मेंस के लिए लक्ष्मीकांत इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स है स्टार्टिंग स्टार्टिंग के, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, DPSP, या तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटी, जो पार्लियामेंट भी है, तो वहां पे इम्पोर्टेंट है। तो वही है, मतलब इम्पोर्टेंट मेंस से लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने, मतलब लक्ष्मीकांत से मेंस के नोट्स बनाना है, वो तुम्हें समझेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि किस किस टॉपिक से निकालना है। अब जैसे कुछ टॉपिक्स है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर GS2 का मेंस। तो उसके लिए लक्ष्मीकांत से बनाना पड़ेगा। फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत का, लक्ष्मीकांत देखो लक्ष्मीकांत काफी बड़ी किताब है, तो लक्ष्मीकांत का बना लिया ना नोट्स, तो एक बार का थोड़ा सा ऐसे जिंदगी सॉर्टेड आउट हो जाता है। मतलब एक ही बार बनाया मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया था, मैं वही पढ़ते रहता था बाकी के दोनों अटेम्प्ट।
तो इसलिए रहता है कि एक बार बना लो एंड थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाओ उसमें से। हर बार लक्ष्मीकांत पढ़ना मतलब इतनी बड़ी किताब अगर प्रीलिम्स के पहले उठाई तो फिर से टेंशन आ जाता है जो अभी इतने पेजेस पढ़ने हैं। तो थोड़ा नोट्स बना लो उसका। स्पेक्ट्रम का आई वुड से कि वो तुम्हारे पे है, अगर तुम्हें हाईलाइट करके चीजें बस अंडरलाइन करके हाईलाइट करके अगर चीजें याद रह रही है एंड स्पेक्ट्रम थोड़ा फास्ट हो भी जाती है तो स्पेक्ट्रम का एक टाइम नहीं बनाया तो भी चलेगा, लेकिन लक्ष्मीकांत का थोड़ा बना लेना। What was your option? एंथ्रोपोलॉजी। Yeah, was somebody asked an anthro-related question. Is it possible to prepare anthropology for CSC 23 without any coaching, only based on basic books plus ready material plus toppers copy plus newspapers plus textbooks? और इतना करने में तो हो जाएगा यार मतलब। बस कोचिंग नहीं, क्लासेस नहीं लेनी, बस बाकी कोचिंग सब कुछ में कर। देखो एंथ्रो का ऐसा हुआ है ना वैसे भी कि ऐसे मतलब जैसे पीएसआई के लिए शुभ्रा मैम है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट पीएसआई के लिए तो सबको पता है कि शुभ्रा मैम में एक सॉलिड एक सोर्स है। एंथ्रो का ऐसे हुआ है कि एंथ्रो का ऐसे कॉन्क्रीटली कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये पर्टिकुलर क्लास लगा लो तुम क्लियर कर लोगे। तो कहीं पे भी लगाया तो भी तुम्हें बहुत सारा सेल्फ स्टडी करना ही है। तो इसलिए आई वुड से कि हाँ मतलब बिना क्लासेस लगा के भी हो सकता है। तो मतलब वही है, थोड़ा रेफरेंस बुक थोड़ा मतलब जो बिना क्लासेस के कर रहे हैं ना तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे L2A हो गया, इवन वैद सर का हो गया, इनके यूट्यूब चैनल पे जो जो टॉपर्स है उन्होंने काफी डिटेल्ड मतलब 2.5-3 घंटे का स्ट्रेटेजी लेक्चर लिया है। तो वो स्ट्रेटेजीज देख लो, मतलब एक 15 घंटे का तो स्ट्रेटेजी ही देख लो सबका, फिर वहां से तुम्हारा एक स्ट्रेटेजी बना लो एंड फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हो। Right. I have taken all most of your questions. Only few are left. Is time, Shubham sir, do you have time or you have to leave? आई हैव अराउंड 5 minutes more because 45 को मतलब Right. आई नीड टू पैक Only अप। 5 minutes, no? So yes, I'll take this for last moment revision or for prelims and mains. देखो मेंस में वैसे तो एनसीईआरटीज का बहुत ज्यादा रोल है नहीं, मतलब अंडरस्टैंडिंग इज गुड, अंडरस्टैंडिंग मतलब इनडायरेक्ट रोल है। लेकिन प्रीलिम्स में कैसा है ना, प्रीलिम में थोड़ा डायरेक्ट ही रोल है जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं एनसीईआरटीज से। तो आई वुड से कि स्किप तो मत करो, मतलब एक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली बेटर है। जैसे इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी मतलब ऐसे होता है बहुत बार कि कहीं से भी इकोनॉमी नहीं समझता है बट एनसीईआरटी से समझता है क्योंकि काफी सिंपल टर्म्स में सिंपल लैंग्वेज में दिया है। तो इसलिए स्किप तो मत करो। बस यू कैन व्हाट यू कैन डू इज के फोकस मतलब ट्राई टू फिल्टर आउट कि कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। तो उतना ही कर सकते हो। जैसे ज्योग्राफी भी हो गया तो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इतनी बढ़िया है कि कभी कभी वीडियो से भी जो नहीं समझता है वो फिजिकल एनसीईआरटी से समझ जाता है। Right. So I've taken all of your questions. I'm sorry if I missed one or two. You still have 2-3 minutes. You can type down again if I missed few questions. सर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो हम फ्लोर ओपन कर देते माइक के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, सर विल बी हियर विद अस अगेन, आई प्रॉमिस यू। डेफिनेटली he is our super mentor and his batch is going to start very soon. Details will be provided on our relevant platforms. So yeah, thank you everybody, thank you aspirants for taking out your time and joining us and joining sir, and especially sir, thank you for taking your time, your precious time for us and the future aspirants and current aspirants. Thank you very much. it was my pleasure. Right, have a So, great night ahead thank you so everybody. much. Yeah. Everyone. Right, thank you so much. Thank you so much. Oh, okay, sir. Yes, bye bye. Thank you. Bye. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.